जहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा वहाँ पर नो डाउट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर रहे हैं तो उसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर. तो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर वो लागू होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो जहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने की आवश्यकता है वहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की आवश्यकता है ही. इसलिए स्वतः ये बात सच है. इसलिए ठीक है, फिजिक्स में हम लोगों को हेल्प मिलता है ना. नया लॉ नियम आने से चीज़ों को समझने में हेल्प मिलता है. या ऐसे भी कह सकते हैं कि चीज़ों को एक्सप्लेन करने, घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मान लो कि एक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मेरे पास है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो सकता है कहीं कहीं, है ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना ज़्यादा, है ना, आसान भी है, ज़्यादा सुविधाजनक भी है और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी, है ना, और ज़्यादा अपीलिंग भी, इसको कह सकते हैं. जैसे इसी केस में देखें जेट प्लेन में, तो जेट प्लेन का जो सिस्टम है ये आगे की ओर मूव करना है. जेट प्लेन हैज़ टू मूव, प्लेन हैज़ टू मूव forward. Okay, plane has to move forward. But this ejection of jet, ejection of smoke, ejection of burning fuel, okay, ejection of burning fuel will be in backward direction. So there are two objects. Objects are two. Fuel in backward direction, jet plane in forward direction, and fuel backward direction. So this fuel is actually burning fuel. In backward direction. Okay. So now you can understand. Burning fuel has got an action from the plane in backward direction so that it will escape. When it is escaping, it will produce reaction equal and opposite on the plane so that plane will move forward. So we can explain in this way an action and reaction pair on two objects. Okay. Now if we have to explain this on the basis of law of conservation of moment. Then here how we can explain on the basis of law of conservation of momentum. Now you think it that fuel and jet. What is the meaning jet? What is the meaning? Jet plane has got two parts, jet and plane. What is meaning jet? Jet is the burning fuel which is coming out as a smoke from the rear end of the plane, rear end, back end, है ना, उससे बाहर आ रहा है. लेकिन वो होने के पहले, आने के पहले दोनों अगर रेस्ट में है तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया? टोटल मोमेंटम zero. So two objects, if we are considering two objects, plane and jet, that means fuel, has got total momentum zero before firing, before motion.
Now, plane is pushing fuel in backward direction so that a negative momentum is created in backward direction due to burning fuel ejection. So now, to counteract negative momentum, there must be some positive momentum in forward direction, and that plane acquires that forward momentum in positive direction, and hence plane acquires speed. Okay, velocity. That is the way it works on the basis of law of conservation of momentum. This could be interpreted, this could be explained. So here the part of the language what we have to use, that is important also. You should consider language is also very important part in physics. We should not forget to use proper language, proper understanding, proper language. Yeah, these things are important. अब मान लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट है, आइसोलेटेड सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम. व्हाट इज द मीनिंग टोटल मोमेंटम? टोटल मोमेंटम ऑफ व्हाट? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर वो दो पार्टिकल कौन कौन सा है? प्लेन है और बर्निंग फ्यूल है जो निकल रहा है, वो पार्टिकल हुआ दो. ठीक है. अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, कॉमन सेंस क्वेश्चन. ठीक है, देखते हैं तुम लोग का जवाब क्या. वेरी कॉमन सेंस. तुम्हारे पास एक दिवाली वाला बॉम्ब है, छोटा बॉम्ब. ठीक है. और वो छोटा बॉम्ब ऐसा है कि जब तुम उसमें फ्लेम लगाते हो, जब तुम उसको जलाने की कोशिश करते हो, फोड़ने की कोशिश करते हो बॉम्ब, तो उसका केवल दो टुकड़ा होना है, ऐसा सिस्टम उसमें डलता है. उसमें ऐसा सिस्टम है कि दो ही टुकड़ा होना है. ध्यान से सुनो. इज इट क्लियर क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके. नाउ यू टेल मी, अगर एक टुकड़ा वो ईस्ट की तरफ हला फूटने के बाद गया है, तो दूसरा टुकड़ा किधर जाएगा? सर वेस्ट में. Sir, अपोजिट उसके. हाँ? sir, opposite जाएगा उसके. क्या हो जाएगा? सर वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा. West. दूसरा टुकड़ा किधर चला जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन. Opposite. सर वेस्ट. वेस्ट में चला जाएगा. कंफर्म है? इसमें कुछ कंफ्यूजन है? यस सर. यस सर. है भाई, बड़ा आसानी से तुम बता दिए हो. वेस्ट सार्थक, क्या बात है? हाँ? बहुत आसानी से तुम बता दिए हो कि वेस्ट में चला जाएगा. हैं? इसका कारण क्या है? How you have decided that it will move towards west? Any one of you? बताइए, कैसे आपने डिसाइड किया कि वेस्ट की तरफ चला जाएगा? बड़ा आसानी से आपने डिसाइड किया. बोलो सार्थक. कंफ्यूजन है तो आंसर तुम अपना बदल सकते हो. सर उस मतलब जो बॉम्ब का था सर, उसका मान लीजिए दो हेमिस्फेयर है, जो कि एक हेमिस्फेयर ईस्ट की तरफ गया, इसका मतलब उसका सेंटर जो है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा था, और दूसरा हेमिस्फेयर एक क्योंकि ईस्ट की तरफ फेस कर रहा था, इससे दूसरा अंडरस्टूड है कि उसका अपोजिट होगा तो वेस्ट में. तो बीच में एक्सप्लोजन के कारण जो फोर्स लगा तो दोनों अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में चला गया. नहीं, यहाँ पर किस प्रिंसिपल के आधार पे आप कह रहे हैं
कि वो दूसरा टुकड़ा वेस्ट की तरफ जाएगा? हाउ यू आर टेलिंग, ऑन विच बेसिस? The third law of motion. हाँ, Sir, third. थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे बताओ? हाउ यू आर टेलिंग? हाउ यू आर टेलिंग? अच्छा देखो, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आधार पर। देखो कितना आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा। बॉम्ब एक सिस्टम है, ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब इज वन सिस्टम, और मे भी इसका दो पार्ट्स हो गया, ठीक है, दो हेमिस्फीयर, जैसे सर तक बोल रहा था, टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। अगर ये फर्स्ट पार्ट ईस्ट की तरफ टुवर्ड्स ईस्ट, लेकिन एक्सप्लोजन के पहले, बिफोर एक्सप्लोजन, टोटल मोमेंटम क्या था बॉम्ब का? जीरो Zero. टोटल मोमेंटम ऑफ बॉम्ब was 0, ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉम्ब was 0. So what will be total momentum of the bomb as a system after explosion? Zero. जीरो होना है। तो अगर एक डायरेक्शन को तुम, इस डायरेक्शन को मान लो कि तुम पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, तो ये डायरेक्शन जो भी होगा वेस्ट, निगेटिव हो जाएगा। अगर टुवर्ड्स इस पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम क्रिएट हुआ है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लोजन के बाद, है ना, आधा पार्ट इस डायरेक्शन में मूव किया है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ है आधे पार्ट में। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम को जीरो होना है। इसका मतलब बाकी का आधा पार्ट नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट करेगा, तभी तो उसको बैलेंस करेगा पॉजिटिव मोमेंटम को। इस कारण से आधा पार्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही जाएगा, सो दैट इट मस्ट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिकॉज any natural phenomenon, any artificial phenomenon, any phenomenon must follow law of conservation of momentum, must observe principle of law of conservation of momentum. So to observe law of conservation of momentum, the half part of the bomb must move towards west, so that total momentum of the system could be zero before explosion and after explosion. That is the point here. सर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछना था। क्या नाम है तुम्हारा? सर आनंद वैभव। आनंद वैभव। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ में आया? यस सर, समझ में। क्या ये काम का चीज नहीं है? है सर। सर वो रॉकेट वाले पे क्वेश्चन पूछना था। क्या रॉकेट वाले पर? सर इफ द सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या रॉकेट वाले में क्या? सर इफ द फ्यूल इज, हाँ, उस पर हम लोग आएंगे, ठीक है ना। वो बर्निंग रेट का जो क्वेश्चन होता है, मास पर यूनिट टाइम, उस पर हम लोग आएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सॉल्व करने में एक चीज़ जो हम लोग को और समझना पड़ेगा यहाँ, अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग था पहले, ठीक है, जैसे मान लो एक वैगन चल रहा है,
और एक लड़का दौड़ रहा है वैगन के पीछे। अब क्या हुआ है, इस वैगन को दौड़ते हुए लड़का दौड़ते हुए इस पर उछल के बैठ गया। यहाँ क्या हुआ है कि चिपक गया सिस्टम। पहले सिस्टम अलग अलग था, दो ऑब्जेक्ट, बाद में एक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? एक्चुअली अगर यहाँ देखा जाए तो ये कॉलिजन, इस ढंग के कॉलिजन को हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। कैसा कॉलिजन कहते हैं? कैसा कॉलिजन कहते हैं? इनएलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक। इनएलास्टिक कोलिजन। Have you heard about inelastic collision? Anyone of you? नो सर। तो देखो, नो सर। कॉलिजन दो तरह का होता है अगर समझा जाए अच्छे से। तो इलास्टिक कॉलिजन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सब इलास्टिक कॉलिजन टाइप्स। लेकिन एक इन इलास्टिक कॉलिजन होता है, लेकिन दोनों में कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगता है। खाली एक चीज़ इन इलास्टिक में लागू नहीं होता है, वो है टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज नॉट इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इन केस ऑफ इन इलास्टिक। एक्चुअली हम लोग जब गन एंड बुलेट वाला बात करते हैं तो वह भी कॉलिजन। कॉलिजन बहुत जगह होता है। कॉलिजन मतलब सीधे हम लोग क्या समझते हैं, कॉलिजन मतलब भाई कार ट्रक से हला टक्कर आ गया, या कैरम कॉइन्स, स्ट्राइकर एंड कैरम कॉइन्स, ठीक है। अब देखो, तुमने देखा होगा बहुत बार, अगर कैरम बोर्ड खेलते समय तुम्हारे पास स्ट्राइकर नहीं है, कभी तुमने कॉइन से कॉइन को हिट किया है? आनंद वैभव, यस सर। यस सर। आनंद वैभव, ये बताओ तुम कॉइन से कॉइन को हिट करने में क्या तुमने ऑब्जर्व किया? व्हाट यू हैव ऑब्जर्व? सर दूसरा वाला कॉइन हिलता है थोड़ा। क्या होता है? सर दूसरा वाला कॉइन जिसको हिट करते वो हिलता है। वो क्या होता है दूसरा वाला कॉइन? सर हिलता है अपने प्लेस से। हिलता है। और Yes, पहला sir. वाला कॉइन जिससे ऊपर। मार रहे हो उसको क्या होता है? सर रेस्ट में जाता है। सर वो रेस्ट में। हिलता है का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग हिलता है? सर सेकंड पॉइंट मोशन में आता है। सर मोशन में आता है सेकंड पॉइंट। कितना मोशन में आता है? कैरम बोर्ड खेले हो तो इसको ऑब्जर्व करोगे ना। इन एवरीडे लाइफ वी हैव टू ऑब्जर्व ऑल दिस प्रिंसिपल्स। देखो, 2 कैरम कॉइन्स, अगर इफ यू आर हिटिंग विद द हेल्प ऑफ 1 कैरम कॉइन अनदर कैरम कॉइन, तो जिस स्पीड से तुमने इसको फेंका वो स्पीड सेकंड कॉइन एक्वायर कर लेगा, और सेकंड कॉइन जो है उस स्पीड को एक्वायर कर लेगा। और जिस फर्स्ट कॉइन अगर तुम गए हो तो फर्स्ट कॉइन वहाँ जाकर के रुक जाएगा। यानी तुमने जिस कॉइन को हिट किया वहाँ जाकर रुक जाएगा, और दूसरा कॉइन जिस जो हिट हुआ है उसी स्पीड से है ना मोशन में आ जाएगा। ये इस ढंग की प्रवृत्ति होती है। इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से प्रूव भी कर सकते हैं। ये इलास्टिक कॉलिजन का एप्लीकेशन। सर क्योंकि यहाँ दोनों का मास एक ही है, इसलिए बाद में वेलोसिटी भी एक है। स्वाभाविक है, तुम जान रहे हो कि कॉइन का मास एक ही है। तुम अगर चाहो तो इस फॉर्मूला के आधार पर इसको प्रूव कर सकते हो। वो कौन सा फॉर्मूला है हम लोग के पास? m1u1 m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। इस आधार पर चाहो तो प्रूव कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस आधार पर तुम बहुत सा न्यूमेरिकल्स, बहुत सा आइडिया डेवलप कर सकते हो। यहाँ पर क्योंकि दोनों मास m1 m2 दोनों बराबर है और एक रेस्ट में है बॉडी, तुम देखो ये फॉर्मूला सिंपल लागू हो, ठीक है। क्योंकि मान लो पहला कॉइन तुमने हिट किया, ठीक है,
तो m1 u1 है, तो m मास ले लेते हैं, दोनों का मास बराबर है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दूसरा कॉइन रेस्ट में है, m इंटू ज़ीरो ज़ीरो। अभी पहला कॉइन जो है ना, और बाद में रेस्ट में आ गए तो ये भी 0। हाँ रेस्ट में आएगा, ठीक है। तो दूसरा कॉइन का स्पीड कितना होना चाहिए, तुम देख सकते हो कि v2 का स्पीड जो है u1 के बराबर है। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए है ना, तुमको थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी को भी समझना होगा। तो जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी चैप्टर, वर्क एनर्जी चैप्टर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के प्रिंसिपल को भी समझेंगे। तब ये फॉर्मूला डिराइव होता है, एक फार्मूला जो इलास्टिक कॉलिजन का फार्मूला होता है, ठीक है। उसमें होता है कि कॉलिजन जब होता है, इलास्टिक कॉलिजन, तो स्पीड जो है, फाइनल स्पीड जो बॉडी का होता है v1 और v2, उसको निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं है ना, वो क्या है, वो अगर डिराइव कर लेंगे हम लोग तो ऐसे और भी क्वेश्चंस को समझने में सुविधा होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले बनाते हैं जो तुम्हारे काम का है और जो बोर्ड में आता भी है ना। तो चलो कुछ क्वेश्चन लिखो। हम लोग सैम्पल पेपर से, सीबीएसई के सैम्पल पेपर से कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं, ओके, ऑल ऑफ यू। चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में वी आर गोइंग थ्रू सर पीरियोडिक टेस्ट कब होगा? देखो हमको लगता है अभी तक तो कुछ कंफर्म हम लोग के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब स्कूल तो आप लोग की खुल ही रही है ना मंडे से, यस सर। तो मंडे को आओगे, हमको लगता है कि हो सकता है कि उसी समय स्कूल में ही हो जाए टेस्ट, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला सितंबर में है ना, वही हो, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई भी तो एक एग्ज़ाम लेगा, पता है ना तुम लोग को। यस सर दिसंबर में, हाँ, नवंबर CBSE दिसंबर में जो लेगा। एग्ज़ाम लेंगे अक्टूबर में, तो उसको हाफ ईयरली कर दिया जाएगा। और ये भी क्योंकि सीबीएसई कहा कि मैंने 2 एग्ज़ाम मुझे लेना है, एक हाफ ईयरली एक एनुअल, सीबीएसई लेगा, ठीक। और उसके बाद जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पीरियोडिक टेस्ट हो जाएगा, हो सकता है। आई थिंक थिंग्स विल बी क्लियर, ओके, नोटिस विल कम, डोंट वरी। लेकिन हम लोगों का तो सर ये सीबीएसई का जो नवंबर दिसंबर का जो टेस्ट होगा ये सारे क्लासेस का होगा? दिसंबर में नहीं, अक्टूबर नवंबर। तो सर सारे क्लासेस का होगा? हाँ, सारा क्लास नहीं, 9, 10, 11, 12 एटलीस्ट, ये 4 क्लासेस, ठीक है। सीबीएसई 9, 10, 11, 12 से ज़्यादा मतलब रखता है, लेकिन उसको फॉलोअप करना है दूसरे क्लासेस को भी, और सीबीएसई को रिपोर्ट करना है, सभी क्लासेस को फॉलोअप करना है उसी हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये सच बात है कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये हम लोग सितंबर को मान के चल रहे हैं कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में हम लोगों का हला एक फुल फ्लेश टेस्ट होगा, जिसमें हम लोगों का हाफ ईयरली के पोर्शंस को हम लोग कवर करेंगे, तक ठीक है। इज इट क्लियर सार्थक? Is it clear? So, okay students, we will continue our discussion.